कैसे आप सब? Today class will study the Einstein photoelectric equation. Okay, but the photoelectric equation, Einstein photoelectric equation. Otherwise, you will say Einstein theory of photoelectric effect. Okay, so basically sorry in 1905, Einstein extend Planck's quantum theory of radiation to explain the photoelectric effect. Okay, in 1905, Einstein extend Planck's quantum theory of radiation to explain, to elaborate the photoelectric effect. The question is, what is Planck's quantum theory? What is Planck's quantum theory? The Planck's quantum theory is different different atoms or molecules can emit or absorb energy in discrete quantities only. The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum. Okay, so simple. The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum, and the energy of the radiation absorbed or emitted is directly proportional to the frequency of the radiation. Okay, is directly proportional to the frequency of radiation. So basically मन रखो, the emitted or absorbed electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency of the radiation. Clear? So, and Einstein Einstein photoelectric effect जाने पूर्व तो आमे देखिदबा photoelectric effect कोन just overlook कर दबा ना photoelectric effect कोन थिला ना simple suppose एठी एटा हमर कोन एटा होचा हमर S माने फोटो सेंसिटिव प्लेट फोटो सेंसिटिव कौन पे कहछि ना से जो फोटो मींस फोटोन फोटोन मींस द क्वांटा ऑफ एनर्जी ओके तो फोटो को से सेंसिटिव माने फोटो फोटोन से मेटल ऊपर पड़िले से सेथरु इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तेनु को ताको फोटो सेंसिटिव प्लेट और दिस इज फोटो कलेक्टिव प्लेट फोटोन कलेक्ट कले सॉरी फोटोन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो एस प्लेट रू आसे से ताको कलेक्ट करे तेनु को सबको कलेक्टिव प्लेट कहा जाए के तो लाइट आसला आउन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एठू पड़ला हैविंग से सुटेबल फ्रीक्वेंसी कोन कुहा है जे सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सॉरी suitable frequency must be greater than the threshold frequency. Okay, threshold frequency what na f naught. Okay, so तो आइंस्टाइन कौन कहले ना सपोज एटा गोटे मटेरियल ऑब्जेक्ट सो आमे एठी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक कले ता एनर्जी केते ना hf ओके E is equal to hf E is equal to hf तो सी जो इलेक्ट्रॉन जो आसी बाडे हबो जो स्ट्राइक करिवो से इलेक्ट्रॉन से अमाउंट रो एनर्जी को दि भाग रे विभक्त करिवो किछि एनर्जी रे से सरफेस ऊपर को आसीबो और देन से हाई स्पीड रो मूव करिवो से सरफेस ऊपर को आसे पे जो एनर्जी से यूज कला ताको कहबा कोन वर्क फंक्शन एंड दिस इज से जो मूव करिवो माने काइनेटिक एनर्जी हमें टी नै जिबा टी ओके ताको ब्रीफली पढ़िबा तो देन देखिबा क्लासिकल रे कोन डिमेरिट थिला ओके ना अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी द एनर्जी कैरिड बाय वेव मोशन इज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द वेव फ्रंट ओके तो फर्स्ट वन है
According to classical wave theory, the energy carried by a wave motion is distributed uniformly over the wavefront. And if a low intensity radiation falls on a metal plate, it will take a longer time to free the electron from the metal plate. Clear? This evident that the classical wave theory tells was a completely failed to explain the experimental results. माने photoelectric effect रे आमे जो results पाइथिले classical theory ताकू ओबे करू नाही. So in 1905 Einstein gives his theory. Okay, तो आइंस्टाइन जो थ्योरी बनैले ता पूर्व से assumption कौन कौन नहीं देखिए. Einstein's assumptions regarding Einstein photoelectric equation. So assumptions 1. Assumptions 1. Now, assumption 1 is the energy of electromagnetic radiation is not continuously distributed over the wavefront but remains concentrated. Okay, on a word concentrated. Concentrated in a packet of energy. Concentrated माने कुमती concentrated हुआ? Concentrated ଗୋଟେ packet of energy कि ଗୋଟେ concentrated ହେଇଯିବ. Okay, having energy केते ना h nu. Having energy h nu. And this packet of energy are called quanta of light or photon. आपको कौन कहबा? Quanta of light, quanta or photon. Okay, so one कौन थला? Let's say again, the energy of electromagnetic radiation is not continuously distributed over the wavefront but remains concentrated in a packet of energy content h nu. Okay, ता से जो पैकेट टाको हम कौन कहबा ना क्वांटा ऑफ लाइट बा फोटोन. क्लासिकल हम कौन कहतला से डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली हे जिवो किंतु आज आइंस्टाइन अजम्पशन कले से कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होबनी से कंसंट्रेटेड हे जिवो गोटे पैकेट भलिया माने एनर्जी पैकेट भलिया. तो से पैकेट टाको एनर्जी कहते ना h nu बा क्वांटा ऑफ लाइट बा फोटोन. Again his assumption is each packet of energy माने जो पैकेट हो रहा है तो each packet of energy so concentrated that it can transfer its whole energy content one electron. माने एई जो फोटोन पैकेट थिला फोटोन पैकेट हमर जो अछि फोटोन पैकेट आर सामर्थ्य अछि ए तार सब एनर्जी दे देबो काकू ना इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कोठे अछि ना मेटल रे. ओके, तार सब एनर्जी से ताको दे परिबो तार सामर्थ्य अछि. And third assumption is the photoelectric effect is the result of interaction of a single photon with a single bound electron. General ଜିନିଷ ଆମର photon ଆଉ electron interaction ହେଲେ ଯାଇକି ଆମ photoelectric effect होଉଛି. ओके, ना ଆମର photon interaction का सहित करिवो electron सहित. ओके, तो these are the three assumptions. Then देखिबा ताको एक्सपेरिमेंट कौन थिला. Yeah, suppose एटा म कहै छी मेटल अछि. दिस इज मेटालिक ऑब्जेक्ट एठी हम एचएफ वाला एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बा फोटोन हमें एठी जो इलेक्ट्रॉन समझ गोटे इलेक्ट्रॉन एक बुझिबा एठी ए गोटे इलेक्ट्रॉन को हमें कोन स्ट्राइक कले गोटे इलेक्ट्रॉन सहित हम स्ट्राइक कले. तो जो स्ट्राइक कले से इलेक्ट्रॉन को से फोटोन सब एनर्जी दे दिबो. आइंस्टाइन से ही अजम्पशन करतले ना हमारो फर्स्ट अजम्पशन सॉरी सेकंड अजम्पशन फोटोन पैकेट सब एनर्जी दे देबो इलेक्ट्रॉन को तार सब एनर्जी दे देबो इलेक्ट्रॉन को. ओके, से जो इलेक्ट्रॉन सब एनर्जी पाइला एच माने जो फोटोन सब एनर्जी गेन कला से एनर्जी को फर्स्ट यूज कला सरफेस ऊपर को आसिया पे.
देन सरफेस उपरू हाई स्पीड रे मैक्सिमम वेलोसिटी रे से मूव कला। तो ये जो ता निज पोजिशन रू सरफेस को ऊपर आसे पे से जो एनर्जी यूज कला दैट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन, दैट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन W। W केते हम जानि छे hf0, hf0 एंड से जो सरफेस रू मैक्सिमम वेलोसिटी मूव कला दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी बाय T, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, mv मैक्स रो स्क्वायर। ओके सो हमें कौन जानले अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू एटा कहूँ आप नोट रे लिखिए बोली। ओके नोट फास्ट कौन लिखिले ना आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तापर जो क्लासिकल रो जो डिमेरिट कहथले लिखिया पई सेटा सेटा लिखिले। देन assumptions जो तीनटा कहले, देन एबे जो पॉइंट ना अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू is incident on a metal surface, its entire energy is transferred to a single electron in the metal। एबे जोटा बुझौतले ओके जे केमिति यूज करबो ना आई रे ताको सरफेस ऊपर को आनिबो। ओके ना कोन ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, ए वर्क फंक्शन हिसाब रे यूज हबो। सेकंड वन इज द रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन टू द सेम इलेक्ट्रॉन, आको इलेक्ट्रॉन को सही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सही इलेक्ट्रॉन को सरफेस ऊपर को आनिबो, देन ताको सेठो मूव करिवो। गिवन द रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन to the same electron appears as kinetic energy which will move the electron with high speed बा maximum velocity। तो हमर इक्वेशन कोन आसला ना ये थिला hf आसिला, hf एनर्जी आसिला। ओके तापर से दुईटा वे रे कला, एठी एठी यूज कला एठी यूज कला, किछि पार्ट वर्क फंक्शन किछि पार्ट काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन पे हमें सपोज w लिखले, देन काइनेटिक एनर्जी पे t लिखले इक्वेशन। ओके देन एठू हमें सपोज काइनेटिक एनर्जी काढिबा t max, t max केते हबो तो t max कारण मैक्सिमम वेलोसिटी मूव करूछ, कारण w टा गोटे इलेक्ट्रॉन पे कांस्टेंट। ओके आ बाकी जहा एनर्जी हबो सबु केते सबु काइनेटिक एनर्जी रे, सबु काइनेटिक एनर्जी रे यूज हबो। तो t max इज इक्वल टू hf माइनस w, w हमें केते कहथिले ना hf0, सॉरी t इज इक्वल टू लिख देले, तो h इज इक्वल टू केते f माइनस f0 ये गला। ओके तो t max को हम लिख पेरा जो मु कहथिले हाफ mv mass रो स्क्वायर एट लिख दोची केते हाफ mv max रो स्क्वायर। This is Einstein equation in terms of frequency, Einstein photoelectric equation in terms of frequency। Again हम यदि वो वेवलेंथ आकर लिखबा फ्रीक्वेंसी रे लिखले तबरे वेवलेंथ रे लिखबा, वेवलेंथ रे लिखले कोन हबो ना सेम हाफ mv सॉरी हाफ mv max रो स्क्वायर इज इक्वल टू h c केथला हमर h c सॉरी h c 1 by lambda minus 1 by lambda 0। ओके कारण हमें जानी छे f is equal to c by lambda। ओके तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। Again start में दे गोटे वेरी इंपोर्टेंट ए दिटा इंपोर्टेंट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 दिस इज इक्वेशन 1। देन आउट लिखिबो 0 is equal to nu minus nu 0, this is nothing but our stopping potential,
stopping potential. This is very much important because it এই ফর্মুলা লো हमर बहुत प्रॉब्लम आसे आइदर सेमिस्टर हो कि हमर एमएससी हो आईटी एग्जाम एंड एससीओ सीपीटी ओके तो v0 केते हला h by e f minus f0 एठी जो न्यू नहीं थले न्यू हे दिस नहीं ना फ्रीक्वेंसी का हमें f रे लिखू आउ न्यू रे भी लिखू ओके तो सेतबे हम एठी न्यू रे लिखितले f minus f0 लिखितले काना क्वेश्चन बेले बेले न्यू लिखि दिए ओके so here our photoelectric effect Einstein photoelectric equation is over तो जस्ट ओवरलुक कर दवा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक को स्टडी करले अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सटेंड करी ओके तो इन 1905 रे आइंस्टाइन तो ये गला सिंपल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवीजन then 3 assumptions then wala derivation this is concept derivation and here are the very important formulas okay very important formulas so then a formula मन रखि तो एटा एटा रखुची then गोटे प्रॉब्लम करबा okay so write down a problem now calculate the stopping potential you wrote down calculate the stopping potential for the photoelectron emitted by a gold cathode okay if the incident radiation is 2 into 10 to the power minus 7 meter and work function is 4.80 electron volt work function केते देला 4.80 electron volt आपन कहै छी ना calculate the stopping potential माने हमको v0 काढिया पे कहै छी पिला माने कोट कंफ्यूजन होती ना एठी calculate the stopping potential for the photoelectron emitter माने कोन कैलकुलेट करे पे कोन बाय करे पे बता जानि परछंती किंतु जो लिखि छी बाय गोल्ड कैथोड if the incident radiation is 2 into 10 to the power minus 7 meter तो 8 पिला जानि परंती एटा से लैम्बडा देछि ओके वेवलेंथ एटी से वेवलेंथ किछ टर्म ही लेकिन किंतु कोन कहै छी emitted by a gold cathode in the incident radiation is 2 into 10 to the power minus 7 meter तो हमको ता यूनिट रो जानिया पड़िबो एटा वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी तो हमर फ्रीक्वेंसी के देला सॉरी वेवलेंथ केते देछि ना सॉरी 2 into per minus 7 meter तो यूज दिस फार्मूला v0 is equal केते हबो h by c by e because physical to and 1 by c e 1 by lambda minus आउ ए क्वेश्चन देखो रहला ई जो w वाला ओके कारण ए f0 होला hf0 hf0 इज नथिंग बट कोन हमर वर्क फंक्शन तो हमर वर्क फंक्शन डायरेक्ट दे देछि माने फर्स्ट टर्म देछि के फर्स्ट टर्म रे लैम्बडा हिसाब रे देछि सेकंड रे लैम्बडा किछि पुट करा कने डायरेक्ट माइनस केते हमर
वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन केते देछि w ता वैल्यू पकेबा ओके तो w बट एठी e भी थिला ना कारण हम फॉर्मूला एठी e नाही एटा e कारण e एठू कॉमन आसी f f0 e टा कॉमन आइछि ओके त हम यदि एठू e न रखिबा जदि हम एठी न e न रखिबा देन एठी रखिले e v0 इज इक्वल एति तो सपोज एठी भी हम जदि e रखि देले एठू e कैंसिल कर देले ओके तो h रो वैल्यू कोन जानिचो केते 6.6 है ना इनटू e डिवाइडेड बाय लैम्डा केते 4 2 into 10 to the power minus 7 मीटर ओके सेठी माइनस करिवो माइनस वर्क फंक्शन जति थिबो ओके तो ई v0 केते आसिला ई v0 आसिला फर्स्ट क्वांटिटी एटा लिखले एटा ए क्वांटिटी रा एटी जस्ट डिनोट करछि माइनस वर्क फंक्शन केते अछि हमरो ना 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.80 into इलेक्ट्रॉन वोल्ट अछि तेनु करे ताका हमें ताको 1.6 into 10 to the power minus 19 multiply करिबा ओके देन वी कैलकुलेट आर आंसर पाइ जिवो देन v0 is equal to r जति आंसर पाइबो देन e 1.6 into 10 to the power minus 19 है so here are the answer so next problem को next problem next what next let radiation of wavelength is एठी डायरेक्ट wavelength वर्ड कहि देछि radiation of wavelength केते देछि 2 नंबर प्रॉब्लम 5 into 10 to the power minus 6 meter 5 into 10 to the power minus 6 meter falls on a metal whose work function is etiki w 0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्ट गुण की रखिदा केते इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल करबा सेठी जो जूल करथिला ओके तो 1.6 into 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 ओके तो कौन पचाची फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ओके तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन माने जो फोटोन टा आसी स्ट्राइक कला ता एनर्जी केते पचाची सो E is equal केते h nu minus w h nu minus w एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सॉरी एठी जो फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पचाची सेटा होचे हमरो से जो एनर्जी रे से मूव करूची ओके कारण ए क्वेश्चन देखो कहां गया हां एठी ए इज इक्वल टू h nu minus w हम लिख रहे ना एटा दिस t max is nothing but e रे हम डिनोट करछे सेठी एंड hf को hf रही छी माइनस ये जो hf0 दिस इज नथिंग बट आवर w ओके तो सी हमरो w दे देछि आ से जो रेडिएशन रो वेवलेंथ देछि रेडिएशन वेवलेंथ जदि हमको जणा अछि तो से रेडिएशन रो एनर्जी जणा अछि माने से पैकेट रो एनर्जी जणा अछि ओके तो ई हमरो केते
ना एच सी बाय लैम्ब्डा माइनस डब्ल्यू एच ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛ सी ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛ लैम्ब्डा ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି गिवन ଅଛି ଆଉ r फंक्शन भी गिवन ଅଛି then easily calculate what is what what is the energy of photoelectron माने जो एनर्जी रे से मूव करिवो maximum velocity रे okay so so now I completed two example of this so now I stop this class and don't forget to but subscribe okay and thank you for all for viewing this so next class रे हमें देखिबा कोन कॉम्पटन इफेक्ट very important compton effect compton effect पढ़िबा then तार किसी प्रॉब्लम करिबा then हमर नेक्स्ट हमर कोन अछि बालमार सीरीज पिफॉन सीरीज सेगुरा सब देखिबा से सीरीज पांचटा जो सीरीज अछि हमर okay so now I end of this class thank you and don't forget to this please subscribe for viewing my live class for join my live class contact me okay thank you